محترم ناظرین، آج ہم آپ کو دل دہلا دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ایک 80 سال کی بانجھ عورت کا۔ اس بوڑھی عورت کو اللہ پاک نے اولاد دی تو گاؤں والوں نے اس کے ساتھ کیا انجام کیا، اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کسی علاقے میں ایک بہت ہی نیک اللہ والے رہا کرتے تھے جو اپنی دنیا میں بہت ہی مگن تھے۔ آپ کبھی کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کیا کرتے تھے، بس اپنے کام سے کام رکھا کرتے تھے۔ اللہ والے کی کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی عادت نہیں تھی۔ اگر کوئی نیک انسان ہوتا تو آپ کا خیال رکھ لیا کرتا تھا۔ یوں تو اس بستی میں رہنے والا نفسا نفسی کا شکار تھے، یعنی اپنا ہی سوچنے والے تھے۔ انہی بے حس لوگوں میں ایک 80 سال کی بڑھیا اور اس کا 100 سال کا شوہر بھی رہا کرتا تھا، جن کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اس بات پر رویا کرتی تھی کہ ہماری کوئی بھی اولاد نہیں اور ہمیں ہی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنتی۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں کیا کرتی تھی۔ اس کا شوہر اس کو اس حال میں دیکھتا تو اس کو سمجھاتا، تم خود کو کیوں ہلکان کرتی ہو، صبر کرو، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ وہ بولتی، میں رب سے مانگ رہی ہوں، کسی اور سے تھوڑی مانگتی ہوں، میرا رب مجھے ضرور نوازے گا۔ اور دکھی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شوہر کہتا، اب اس عمر میں اولاد کہاں سے ہوگی، تم بھی کیسی دعائیں مانگتی ہو۔ وہ کہتی کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس عمر میں بھی نیک صالحہ اولاد مل جائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ شوہر کہتا، جوانی سے لے کر اب تک تم دعائیں ہی مانگتی آ رہی ہو، جوانی میں تم ماں نہیں بنی، بڑھاپے میں ماں بننے کے سپنے نہ دیکھو۔ اب جب کہ ہم اس قابل نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے، جیسے جو بولو گی وہ ہو جائے گا۔ اگر ہماری قسمت میں اولاد ہوتی تو کم از کم اتنی دعائیں نہیں مانگنی پڑتی تھی، وہ بھی اس بڑھاپے میں۔ لیکن وہ عجیب تھی، اس کی یہ دعا یوں ہی جاری رہتی۔ اب رمضان پاک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ جو بانجھ جوڑے ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، رمضان میں جب روزے رکھتے ہیں تو افطاری کے وقت اللہ کا نام لے کر دعائیں مانگتے ہیں۔ اس کا شوہر تو اس کی ان باتوں کو یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا کہ عجیب عورت ہو تم، 100 سال کی عمر میں اولاد کی خواہش کرنا تو ایک ایسی بات ہے جیسے تم کسی سوکھی بنجر زمین پر کھیتی اگانے کی بات کر رہی ہو۔ وہ کچھ نہ کہتی، بس دعا کرتی رہتی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دن اللہ والے اپنی عبادت کر رہے تھے، یہ روزے کا وقت تھا۔ اللہ والے نے اس وقت اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی، اے رحمان الرحیم، اے رحیم کریم، تو رزاق ہے، تو قادر ہے، تو جبار ہے، تو واحد ہے، تو موجود ہے، تو واسع ہے، تو سمیع البصیر ہے، تو علیم ہے۔ اس مبارک مہینے میں جس کی جو خواہش ہے پوری کر دینا۔ وہ ایسے ہی گر گرا کر دعا مانگ رہے تھے، اسی راستے سے بڑھیا کا شوہر گزر رہا تھا۔ اس نے آپ کا اتنے خوبصورت انداز میں دعا مانگتے سنا تو آپ کو کہا کہ آپ بہت پیاری دعا مانگتے ہیں، میں نے کبھی اس طرح کسی کو دعا مانگتے نہیں دیکھا نہ سنا، آپ ہمارے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا کہ کیا دعا ہے؟ اس کے شوہر نے کہا کہ ہماری دعا کچھ خاص نہیں، اس عمر میں جب کوئی امید نہیں، اولاد ہو یا نہ ہو، نہ میرے اندر طاقت ہے، نہ میری بیوی کے اندر کوئی طاقت ہے، نہ ہمارے اندر کوئی خواہش ہے، لیکن اس عمر میں بھی میری بیوی کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صاحب اولاد کر دے، اس لیے آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اولاد دے دے۔ اللہ والے نے کہا کہ تمہاری بیوی کو اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ سے بہت ساری امیدیں ہیں کہ اللہ پاک اس کو اولاد دے۔ اگر وہ اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ سے توکل اور امید لگائی بیٹھی ہے تو ایسا کرو، اس رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ خیرات بڑھا دو، رمضان کے پورے روزے رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ والے اس ضعیف آدمی کی باتیں ابھی چل رہی تھی کہ ایک آدمی جو اس گاؤں کا سب سے برا آدمی تھا، وہ ہمیشہ برائی پھیلایا کرتا تھا۔ وہ آدمی اور اس کی بیوی لوگوں کے درمیان لڑائی کروایا کرتے تھے۔ وہ وہاں کی بات سن کر کہنے لگا کہ اے ضعیف آدمی،
आदमी वैसे कभी तो किसी से बात नहीं करता, अब बात की है तो ऐसी अनहोनी जो नामुमकिन है। अल्लाह वाले ने कहा कि कौन सी बात है जो नामुमकिन है? अल्लाह के दरबार में सब बातें मुमकिन हो सकती हैं। वो जो चाहे सब कर सकता है। उसको जो नहीं जानता वो मिट्टी में मिल जाता है। उसने हम पर बड़े एहसान किए, तभी तो हमें रमजान पाक अता फरमाया। हम उसकी इबादत भी करें, उसको राजी भी रखें और फिर जो चाहे हम दुआ मांगे तो वो दुआ जरूर कबूल करता है। उसकी मोहब्बत है अपने बंदों पर कि उसने रमजान पाक हमें अता किया, तो क्यों ना हम इस महीने में भी दुआ मांगे, सच्चे दिल से दुआ मांगे। तो वो सब कुछ करना जानता है, हम नहीं जानते उसकी हिकमत को। अल्लाह वाले की बात सुनकर वो शरपसंद आदमी हंसते हुए कहने लगा, ए बूढ़े, तुम्हारी बात तो बहुत अनहोनी है। बेटे तो बहादुर हुआ करते हैं। एक ज़ईफा जिसकी उम्र 80 साल है और उसके शोहर की उम्र 100 साल है, उनके यहाँ औलाद कैसे हो सकती है? वो तो बहुत जिद्दी बुढ़िया है, एक बात के पीछे पड़ जाए तो बस पड़ जाती है। उसका शोहर भी दीवाना है, हर वक्त औलाद की चाहत में पड़ा रहता है। इस बांझ बुढ़िया और उसके बांझ शोहर को अब औलाद कैसे मिलेगी? और तुम भी इनको सिर्फ झांसे दे रहे हो। कब्र में इनके पांव लटके हुए हैं और ये औलाद मांग रही है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। अल्लाह वाले ने कहा कि किसी का मजाक नहीं उड़ाते, हमें नहीं पता कि अल्लाह अज़्वजल कब किसकी झोली भर दे, और तुम इस तरह इनका मजाक मत उड़ाओ, इनका दिल मत तोड़ो। रमजान का महीना है, क्या तुम्हारा रोजा नहीं है? उसने कहा कि क्यों नहीं है, मैं कभी भी रोजा नहीं छोड़ता, उस वक्त भी रोजे से हूँ। तो फिर रोजा अपना क्यों खराब कर रहे हो? ये अल्लाह से मांग रहे हैं, तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैला रहे। इस वक्त तो वो बुड़बड़ाता हुआ अपने घर चला गया। अल्लाह वाले ने इबादत करना शुरू कर दी। वो ज़ईफ आदमी भी चला गया और उसने अपनी बीवी को जाकर सब कुछ बताया। उसने कहा कि ये जो अल्लाह वाले हैं इस गांव में है, जिनको हम ठीक से जानते नहीं थे, क्योंकि वो किसी से कोई बात नहीं करते थे। इन अल्लाह वाले की अफ्तारी का इंतजाम अब हम किया करेंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ सहरी और अफ्तारी दोनों बनाकर भेजा करेंगे। ये सुनकर वो ज़ईफ बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अल्लाह वाले हमारे लिए इतनी प्यारी दुआ मांगते हैं। मैं तो उनको जरूर सहरी और अफ्तारी बनाकर भेजा करूंगी। अब कोई और उनका ख्याल रखता या ना रखता, वो 100 साल के बूढ़ा और उसकी बीवी अल्लाह वाले को रोजाना सहरी और अफ्तारी बनाकर भेजा करते थे। वो आदमी जो कि बहुत ही बदतमीज आदमी था, उसने अपनी बीवी को ये बात बता दी कि किस तरह वो दोनों ज़ईफ लोग अल्लाह वाले से दुआ करवाते हैं कि उनकी खिदमत कर रहे हैं। अब दोनों मियाँ बीवी गाँव वालों के पास जाकर उन दोनों ज़ईफ मियाँ बीवी का मजाक उड़ाते और कहते कि देखो, अपनी औलाद पाने के लिए ये क्या कुछ करते फिर रहे हैं। इस बूढ़े फकीर के आगे फिर रहे हैं, उसके पीछे फिर रहे हैं, इस उम्र में भी अयाशी का सूझ रही है। अल्लाह वाले उनकी गलत बातों को सुनते और दुआ करते कि या अल्लाह, ये लोग जो समझ रहे हैं तो इनको गलत कर दे, तू तो बहुत ही बड़ा देने वाला है। औलाद का होना ना होना तेरे हाथ में है, तो जिसे चाहे औलाद वाला बना दे, जिसको चाहे बेटा बेटी दे दे या फिर बांझ कर दे। लेकिन एक औरत जो कई सालों से तुझसे लो लगा कर बैठी है और अब तक उसकी आस नहीं टूटी, क्योंकि वो तुझे जानती है, वो तुझे मानती है, वो तेरी ही इबादत करती है, उसकी इस आस को कभी न तोड़ना। जिस तरह ये मेरा पेट भरते हैं, मुझे सहरी अफ्तारी करवाते हैं, इस तरह तू भी उनको एक ऐसा फल अता कर दे जो उनके लिए क़यामत तक के लिए सदक़े जारिया बन जाए और उसके बाद की जिंदगी के लिए भी आप उनके लिए दुआ करते रहे। वो ज़ईफ आदमी आपके पास आकर बैठ गया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है, तुम बहुत गमज़दा नजर आ रहे हो। उसने कहा कि मैं दुखी कभी नहीं हुआ हजरत, अल्लाह का बहुत शुक्र है क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे सुकून में रखा हुआ है, एक अच्छी और नेक बीवी दी है जो जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा है मेरे लिए, और मैं अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन हूँ। मुझे किसी चीज का कोई दुख और पछतावा नहीं, लेकिन अपनी बीवी की गम को देखकर मेरा कलेजा फट जाता है। उसका कोई बच्चा नहीं, ममता की मारी वैसे भी बहुत तकलीफ में थी, ऊपर से अब गांव वाले उसे ताने मारने लगे हैं कि जब से इसने मुझसे ये बात कही और मैंने आप तक ये बात पहुंचाई, आपसे दुआ करवाई कि हमें
हमें अल्लाह ताला औलाद दे दे। सब आकर कहते हैं कि तू तो एक बंजर जमीन है, उस जमीन का एक खुशक टुकड़ा है, तू एक बांझ औरत है। अगर तुझे अल्लाह औलाद दे भी दे, अगर तू मर गई तो आखिर उन बच्चों को कौन पालेगा। उन्हें तो वो कह रही थी, ये बात तो सच है, अगर मैं मर गई तो बच्चे को कौन पालेगा, उनका क्या होगा। ये सुनकर अल्लाह वाले कहने लगे कि जो देता है वही उन बच्चों की कफालत भी करता है, यानी वही उनकी जिम्मेदारी भी ले लेता है। अगर तुम्हें उसने औलाद अता कर दी तो फिर देखना वो होगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये तो सब अल्लाह ताला के हाथ में है। वो आदमी वहां से चला गया। अल्लाह वाले हमेशा उसके दिल को यही दिलासा दिया करते थे, उसको तसल्ली दे दिया करते थे। अल्लाह वाले ने उसको दिलासा देते हुए कहा, क्यों ये लोग किसी का दिल तोड़ते हैं, वो भी ऐसे महीने में जबकि नेकियां समेटनी चाहिए, अपनी जबान को काबू में रखना चाहिए, दिलाजारी तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए। दिल दुखाना तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और ऐसे शख्स क्या अगर उसकी आह लग जाए जो कि बहुत ज्यादा गमगीन हो, जो अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहता हो, जिसने किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचाई हो, फिर तो उसकी आंख का आंसू अर्श तक जाता है। एक दिन आपने उन औरतों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग जो कि ज़ईफ औरत को ताने मारती हो, अपनी जुबान से उसके दिल को चकनाचूर करती हो, ऐसा ठेस पहुंचाने वाला काम न करो। तुम नहीं जानती अल्लाह अज़्वजल बहुत कुछ कर सकता है। जिसकी तुम लोग इबादत करती हो वो कौन है, वो कितना ताकतवर है। तुम्हारे बुरे अलवासों से उस ज़ईफा का दिल इतना टूट चुका है, हर तीर उसके दिल में घुस गया है और हर जख्म से निकलने वाले आंसू का बदला लिया जाएगा। मत दुखाओ किसी का दिल रमजान के इस मुकद्दस महीने में, नेकियां करो, ख्याल रखो एक दूसरे का, वरना अगर इस महीने की बरकत को ना पाया तो फिर कभी कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब मिलेगा। एक औरत कहने लगी, अच्छा तुम हमें बद्दुआ देते हो, पहले तो कभी कुछ नहीं बोलते थे, अब तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी क्यों आ रही है, वो भी इस औरत के लिए। उससे तो हम यही समझेंगे कि वो औरत ठीक नहीं है, उसका शौहर बूढ़ा है और वो औलाद पाना चाहती है और वो इस काबिल नहीं है, तुम पर दौड़े डाल रही है ताकि किसी भी तरीके से बस माँ बन जाए। एक बच्चा पाने के लिए किस हद तक जा रही है। अल्लाह वाले ने कहा कि अपनी जबान को काबू में रखो और अपनी जबान को अच्छे कामों में इस्तेमाल करो। रोजे की हालत में ऐसे घटिया अल्फाज बोलोगी तो बहुत गुनाह मिलेगा। लेकिन उस औरत ने तमाशा खड़ा कर दिया, क्योंकि वो वहाँ की सबसे अमीर औरत थी। उस लालची घमंडी बदतमीज शख्स की बीवी थी। उसने शोहर को जब बलवाया तो वो धनधनाता हुआ आया। उसकी बीवी अपने शोहर को कहने लगी कि ये बूढ़ा मुझे बिला वजह बदनाम कर रहा है सबके सामने, जबकि मैंने इससे अपनी कोई बात नहीं की। ये बूढ़ा मुझसे गंदी बातें कर रहा है। अल्लाह वाले के बुजुर्ग के लिबास पे एक ढोंगी शख्स है, इस आदमी को इस गांव से बाहर निकलवा दो। वो अमीर आदमी अल्लाह वाले के पास आया। नफरत तो वो पहले ही करता था, अब तो उसको एक और मौका मिल चुका था। उसने कहा कि ऐ बूढ़े इंसान, अपने काम से काम रखो वरना इस गांव से निकाल दूंगा। औरतों से तुम्हें क्या मतलब है और उस बुढ़िया की तरफदारी करते हो? क्या उसका शौहर मर गया है जो उसके तुम हवायती बन गए हो? हम तुम्हें निकाल देंगे और उसको भी निकाल देंगे। अल्लाह वाले ने कहा कि देखो रमजान का महीना है, कैसी बातें कर रही हो, यहाँ पर वो लोग जो हमारे लिए अजाब बन गए हैं। अल्लाह वाले ने कहा कि ऐसा ना करो, अल्लाह का सख्त अजाब तुम पर आएगा और तुम सब पर नाजिल होगा। वो खबीस औरत शौहर से कहने लगी कि देखा कैसे बददुआएं देता है, अरे मेरे पास तो सब कुछ है, दौलतमंद शौहर है, उसका पैसा है, सेहत है, जवानी है और सबसे बड़ी बात मेरे पास तीन बेटे हैं, तीन खूबसूरत हट्टे कट्टे जवान बेटे हैं जिनका मुकाबला इस गांव में कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह वाले ने कहा औलाद पर गरूर न कर, माल पर गरूर न कर, तू सेहत पर भी गरूर न कर, तेरी जवानी अभी ढल जाएगी। ऐ इंसान, तू खुद तो बूढ़ा है और मुझे कहता है कि मेरी जवानी खत्म हो जाएगी। ये खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि औलाद का होना नेमत है। इससे ज्यादा फख्र की क्या बात होगी कि मेरे पास तीन बेटे हैं। जरा बताओ मुझ जैसा शान वाला, गर्दन अकड़ा कर चलने वाला और कौन होगा जिसके
के पास दौलत है, दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है, वो सब कुछ मेरे पास है जिसकी इंसान ख्वाहिश करता है, और मुझ जैसा खुशकिस्मत इस पूरे गांव में कोई नहीं। अल्लाह वाले ने कहा कि तूने कुरान पाक पढ़ा? कहने लगी कि क्यों नहीं पढ़ा, रमजान के महीने में हर रोज सुबह उठकर पढ़ती हूँ। उन्होंने कहा कि तूने सूरत तकासुर को पढ़ा? मुझे बता कि वो कुरान पाक के कौन से सिपारे में है। वो जब सुना तो वो खामोश हो गई। अगर उसे कुरान पाक से चाहत होती, मोहब्बत होती तो उसको दिखलावे के लिए ना पढ़ती, अगर पढ़ा तो दिखलावे का। अल्लाह वाले ने कहा कि सुन, अल्लाह ताला ने उस सूरत में क्या इरशाद फरमाया है। कहा कि जिन लोगों को जिंदा रहने की, इस दुनिया में रहने की चाहत और उन पर गरूर, अपनी जवानी और सेहत पर और दौलत जायदाद की हरस यानी कि हवस, लालच, इज्जत की लालच, इस सूरत में तुम जैसे बदनसीब लोगों का बयान है जो माल की लालच का शिकार हो गए। माल की हवस, माल की हिरस अल्लाह के हुक्म से गाफिल हो गया, यहाँ तक कि उन्हें मौत ने आ लिया और वो कब्रों में जा पहुंचे। तो अपना हाल देख कर तुझे कितनी लालच है, तुझे कितना गरूर है। सूरत तकासुर में यही बयान किया गया है कि जिनको हवस है उनका बुरा अंजाम होगा और उनका ठिकाना जहन्नुम है, इसके सिवा कुछ नहीं। वो वक्त आने वाला है जब दुनिया में अता की जाने वाली नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, एक एक चीज के बारे में पूछा जाएगा, हर अमाल के बारे में तुम्हें जवाब देना होगा। बेशक जहन्नम ऐसे ही लोगों का मुकद्दर है दुनिया में जो माल जमा करते रहे और इतना ज्यादा माल पाकर, इज्जत पाकर और लालच में पड़ गए और अपने दीन से ही हाथ धो बैठे। कुरान की ऐसी आयत सुनकर भी उसको होश न आया, बल्कि पूरा गांव इकट्ठा करके बोली, गांव वालों, मैं इस गांव के करोड़पति आदमी की बीवी तुमको हुक्म देती हूँ कि इस बूढ़े को दरख्त से बांध दो। इसकी इतनी जुर्रत कि ये मेरे सामने, मुझे लोगों के सामने दलील करे, ये मुझसे पूछे कुरान पढ़ती हो या नहीं। गांव वालों का दाना पानी तो उससे चलता था, जो खिलाता है इंसान उसी के तो गुनगाता है। वो बुढ़िया, उसका शोहर शोर सुनकर वहां आ गए। वो अल्लाह वाले की इस कदर नाकदरी देख कर रोने लगी कि मेरी खातिर इन्होंने कितना कुछ झीला है, ये मेरे लिए सबसे लड़ रहे हैं। वो उस औरत के आगे हाथ जोड़ कर कहने लगी कि देखो, इनको कुछ ना कहो, इनका कोई कसूर नहीं, मैं ही पागल हूँ, मैं ही जनूनी थी जो ऐसी दुआ मांग रही थी। मैं जानती हूँ इस बुढ़ापे में कोई भी औलाद नहीं मिल सकती, मैं खुद मरने के करीब हूँ, कहाँ से मुझे बेटा पैदा हो सकता है। तुम इनको दरख्त से ना बांधो, इन्होंने जो किया मेरी खातिर किया था, इनको छोड़ दो। वो बूढ़ी औरत बहुत चिल्ला रही थी और किसी ने कुछ न सुना। उस औरत ने कहा कि इनको पेड़ के साथ बांध दो, अब इस बुढ़िया और इन दोनों को कोड़े मारो, क्योंकि इन्होंने जुर्म किया है, गुनाह किया है, ये दोनों बदकारी कर चुके हैं, तभी तो ये बूढ़ा इस औरत की इतनी हमायत करता है। ये कहकर उसने बुढ़िया को जोर से धक्का मारा। चापलूस लोग अल्लाह वाले को पकड़ने के लिए आगे बढ़े कि उन्होंने पुकारा, ए अल्लाह, तू तो सब जानता है, तू आलमुल गैब है, तू कबीर है, तू अलीम है, तू खालिक है, तू राज़िक है, तू ही रब्बुल आलमीन है, तू रब्बुल जलाल है, तू वाहिद है, तू मौजूद है, मंजर जमीन पर पेड़ पौधे उगाता है, तो क्या तू एक बुढ़िया को औलाद नहीं दे सकता? तू दिखा दे इन जालिमों को, तू तो सब कुछ कर सकता है। इनकी जुबान ने बड़ा दिल दुखाया है इस बूढ़ी औरत का, जो सिर्फ तुझ ही से मांगती है, इसके दिल को मायूस न कर, ये तुझ पर भरोसा रखती है। ए रब्बुल आलमीन, मायूस तो बंदे करते हैं, तू नहीं करता, दिल तो बंदे तोड़ते हैं, तू नहीं तोड़ता। वो औरत बोली कि यहाँ कोई भी तेरी दवा नहीं सुनेगा, बस करो। इससे पहले कि वो औरत कुछ और बोलती, उसकी जुबान को ऐसा ताला लगा दिया गया कि जैसे जुबान को किसी ने मजबूती से पकड़ लिया हो। अब वो कोई बदजुबानी नहीं कर सकती थी। वो अपने शोहर को अपनी जुबान दिखाने लगी कि देखो ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो इशारे कर रही थी, तड़प रही थी, लेकिन बोल नहीं सकती थी। इसके अलावा हो ही क्या सकता था। अभी उसकी तरफ सबका ध्यान था कि वो ज़ईफा अपनी घर की तरफ भागी जैसे कोई जवान औरत। अल्लाह वाले ने ऊंची आवाज में कहा कि यहाँ कोई दाया है। एकदम से एक औरत सामने आ गई। उसने कहा कि जी हाँ मैं हूँ। उसने कहा कि जाओ उस औरत के घर। और कुछ औरतें ज़ईफा के घर के अंदर गई। फिर जो सब ने सुना वो बेइख्तियार सब ने देखा। अल्लाह का नाम लिया, गांव पूरा अल्लाह अकबर
करने लगा। रमजान के महीने में ये कैसी खुशखबरी सुनने को मिली, क्योंकि जो शोर उठा था वो कभी किसी ने नहीं सुना था। वो बात जब सब ने सुनी कि उस बूढ़ी औरत ने एक साथ 3 बेटों को, जो चांद के चेहरे वाले थे, नूरानी चेहरे वाले थे, सेहतमंद बेटे थे, उनको जन्म दिया। उसका शौहर भी घर गया। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पर उस मक्कार औरत का शौहर अपनी बीवी की हालत देख रहा था कि जिसकी जवानी बुढ़ापे में बदल रही थी। वो देखते ही देखते बूढ़ी हो गई, 80 साल की बुढ़िया बन चुकी थी। इतने में एक दिल को रुला देने वाली खबर फैल गई कि इसके 3 बेटे अचानक मर गए। कैसे मरे किसी को कुछ पता न चला। एक तरफ खुशियां और एक तरफ गम की चादर बिछ गई। वो दौलतमंद औरत इस बुरी खबर को बर्दाश्त न कर सकी, पागल हो गई। उसका शौहर सदमे को बर्दाश्त न कर सका, खड़े खड़े गिर गया। अभी कोई औलाद पर घमंड कर रहे थे, अकड़ रहे थे, इनका सब चुटकियों में बर्बाद हो गया। उनके हाथ कुछ न आया। अल्लाह वाले को बहुत ही इज्जत और आबरू के साथ रखत से खोल दिया गया। सब गांव वाले आपसे माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि देखा अपनी आंखों से, सब कुछ लुटते तबाह होते, मट्टी में मिलते हुए सब फना हो गया। सिर्फ रब की ताकत और उसकी अता है। यहाँ खुशखबरी उस ज़ैफ़ा के यहाँ बेटे पैदा हो गए। 3 बेटे तो पैदा हुए, लेकिन दोनों मियाँ बीवी को जवानी खूबसूरती भी अता कर दी गई। और देखते ही देखते उनके घर में दौलत के खजाने खुल गए, क्योंकि असल में वो गरीब नहीं थे, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा हुआ था कि पूरा गांव खरीद सकते थे। लेकिन उस औरत और उसके शौहर ने चालबाजी से उनकी जमीनें, उनका कारोबार, जहां तक कि उनका घर भी हथिया लिया और उस पर राज कर रहे थे। ये जुल्म लोग कब तक बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन जालिम के साथ थे। उन्होंने उनके खिलाफ आवाज न उठाई, पर वो आदमी और उसकी बीवी इस बात पर सब्र करते रहे। वो औरत इसीलिए तो चाहती थी कि उसका बेटा हो, ताकि उसका बेटा बूढ़े माँ बाप के लिए खड़ा हो जाए और उनके लिए इस जुल्म से लड़े। तो इसीलिए अल्लाह वाले की दुआ से उसको एक नहीं 3 बेटे अता किए गए। लेकिन वो बच्चे तो छोटे थे। अल्लाह ने इससे पहले ही उनको खाली झोली उनकी भर दी और सारी दौलत उनको दे दी। जो छीनी हुई थी, हड़प कर ली गई थी, वो सब उन्हें लुटा दिया गया। और वो औरत जो कुछ देर पहले अकड़ रही थी, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। अल्लाह पाक ने उससे छीन लिया, उस ज़ैफ़ा को सब कुछ दे दिया। वो शख्स जो कि अपनी बीवी की इस हालत को देखकर खुशियां मना रहा था, अल्लाह वाले के पास आया। उसने कहा, अल्लाह वाले, आपने मुझे क्या कुछ दे दिया। आपने तो हमारा ईमान ही ताज़ा कर दिया। सोचा नहीं था कि कभी ऐसा मुमकिन था, लेकिन आपकी दुआ का जादू चल गया। अल्लाह वाले ने कहा कि दुआ का जादू नहीं, बल्कि तुम्हारी बीवी का तवक्कल जीत चुका है। उसका अपने रब पर तवक्कल था, जादू तो रब की रहमत का चला है। फिर अल्लाह वाले उन गांव वालों की तरफ देखकर कहने लगे, किसी जालिम का साथ देने वाले भी असल में जालिम ही होते हैं। वो लोगों पर जुल्म होते हुए देखा। तुम देख रहे थे कि वो औरत इस ज़ैफ़ा को कितना दुख पहुंचाती थी, लेकिन कभी तुमने उसको रोका नहीं, क्योंकि वो तुम सबको खाना खिलाती थी। तुम सबको उसने खरीदा हुआ था। अरे सबसे बड़ा देने वाला तो अल्लाह ताला है। कभी उससे मांग के तो देखते। ये ज़ैफ़ा के यकीन को ही देख लो, जिसने किस तरह अपने रब से मांगा भी, दुआ भी करती, लेकिन जालिम के साथ मिलकर जुल्म करने वाले तुम भी हो गए। तुम लोगों ने इस ज़ैफ़ा के दिल को ठेस पहुंचाई है। अल्लाह ताला तुमसे भी नाराज है। रमजान का महीना है, रमजान का महीना है। इस रहमत और मग़फ़िरत वाले महीने में तुम सब भी दुआए खैर करो, अपने लिए भी और सब के लिए भी। जितना हो सके नेकियां करो, नेकियां करने वाला बच जाता है। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारे दिल से बुग़्ज़, कीना, हसद जैसी बीमारियों को साफ कर दे और हमारी वजह से कभी भी किसी का दिल न दुखे। आमीन।